Good afternoon, everyone. My gratitude of the dais. Friends, today we are going to learn together a topic which is very much of importance in cross-border trade and international trade globally, but from a very different legal perspective. Friends, to start with, सबसे पहले हमें समझना होगा what is the meaning of letter of credit. As we all know, letter of credit provides financial security to the seller. Letter of credit binds the bank to pay. Letter of credit builds trust between the nations globally to have some trade. Letter of credit ensures that the seller will be paid as soon as the buyer receives the goods. And letter of credit also ensures that buyer get the right goods prima facie, not in technical terms, but prima facie as per agreed terms and conditions. Now friends, we need to understand how does letter of credit work. So basically there are 5 parties in the letter of credit. 4 are mentioned before you, and the 5th is consortium of bank. Let me explain one by one. First is buyer. Buyer is an applicant. As soon as he places an import order, he will request his bank, that is issuing bank in technical, for a letter of credit. Letter of credit, the issuing bank will take care of the credit worthiness, collaterals, demands, collateral margins at the time of issuance. Then issuing bank will convey to the selling bank about the letter of credit that they have received the credit. Issuing a seller bank, that is the advising or confirming bank in technical terms, will convey to the seller that they have received the credit. On that confirmation, seller will ship the goods to the buyer and present the documents, that is commercial invoice, bill of lading, packing list, etc., to his bank in a foreign country. His bank send the documents to the issuing bank in the home country, that is buyer's bank. Buyer's bank will examine everything in detail, that terms and conditions that are agreed upon initially are the same, and then the payment will be made by the buyer's bank basically. And afterwards, at last, buyer will present the documents to custom to release its goods. So this is the basic framework. How does letter of credit work? This framework is governed by Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, basically UCP 600, introduced by the International Chamber of Commerce in 2007. India is also a member country. This is presently followed by 175 plus countries globally. Now friends, let's understand. As we know, LC is a very important, useful tool for international trade. So it has a cost. The cost may vary from 0.5% to 1% of the guaranteed amount. But please note, this cost is very much different from the interest charged by the bank and your internal administrative and finance cost. So for example, आपने 1 साल के लिए LC लिया और आपने आज import order place किया, बैंक 1 साल बाद पेमेंट करने वाला है आपके LC का. Let's assume we are in October 2025. आपका LC अक्टूबर 26 में क्लोज होने वाला है. बैंक ने अक्टूबर 26 में सेलर को पेमेंट कर दिया, दैट इज बेनिफिशियरी द एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स. बट आपने पेमेंट दिसंबर 26 में किया. सो यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 3 मंथ्स का लगेगा, फ्रॉम अक्टूबर 26 टू दिसंबर 26, ना कि पूरे 1 साल 3 महीने का लगेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. आज खाली बैंक ने इशू किया है, बैंक उसके चार्जेस लेगा, लाइक डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, एक्सटेंशन चार्जेस, इशुएंस चार्जेस, बट इंटरेस्ट लगेगा उस पेमेंट मैकेनिज्म का अक्टूबर 26 टू दिसंबर 26 ओनली. फ्रेंड्स, we must cautiously decide, we must not be in hurry at the time of applying कि चलो LC ले लेते हैं. Since it require high collaterals, very high margins in the form of cash balances, bank balances, FDs, RDs, bank will place the lien as soon as they will issue an LC to you. So therefore, we must not be in hurry and weigh down all pros and cons in very detailed manner before applying. In our offices, we examine the proposal for LC for our clients, and we do a detailed critical cost benefit analysis. And LC ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए suitable है. If you are a small trader, that depends on the fact to fact cases. तो LC की जगह आप दूसरी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं. We'll discuss. Now friends, this is the most important slide for the presentation. That is features of letter of credit. इसके 2 important points पे, features पे हमारा judicial approach टिका हुआ है. So please pay attention. My humble request. First is irrevocability. अगर एक बार LC इशू कर दिया बैंक ने, मतलब कि इशूइंग बैंक ने रिक्वेस्ट किया और सेलर बैंक ने कंफर्म कर दिया, देन LC कांट बी रिवोक्ड. 99% ऑफ रिवोक्ड. सेकंड इज डॉक्यूमेंट्री नेचर. पेमेंट इज कंडीशनल है. जैसे ही स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स जो एग्रीड हैं उनको आप अपने इशूइंग बैंक को दिखाएंगे, यानी कि सेलर प्रेजेंट करेगा इशूइंग बैंक को स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, वो पेमेंट कंडीशनल है उसी बेसिस पे.
Detailed documentation, as we discussed, it contains the detail of shipment and every detailed transaction. Proceeding further, compliance. Bank shall pay if the conditions of LC are satisfied by the seller and the documents match with the LC requirements. For example, कोई discrepancy arise हुई at the time of payment. वो discrepancy आपको within a certain time frame ठीक करानी है. एक concept है कि LC की, हर LC की एक validity होती है. एक LC issue हुई मान के चलिए 3 महीने के लिए, और seller ने shipment भेजा ही नहीं, या भेजा तो डैमेज हो गया, या किसी भी वजह से बायर के पास 3 महीने में शिपमेंट नहीं पहुंचा, और उस वजह से सेलर अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं कर पाया बैंक को. इशूइंग बैंक इज अंडर नो ऑब्लिगेशन कि वो आपको पेमेंट करे अनलेस एंड अनटिल बायर या तो नए एलसी के लिए रिक्वेस्ट करे या पुराने एलसी के एक्सटेंशन के लिए करे. तो दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट. डिलेड एक्सपोर्ट्स के लिए इशूइंग बैंक इन द होम कंट्री, दैट इज बायर्स बैंक, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. प्रोसीडिंग फर्दर, पेमेंट मैकेनिज्म. As I highlighted, banks act as a bank is not a commission agent. Banks are authorized by RBI under RBI Act to issue and for the benefit of trade. So banks are statutory intermediaries. They are governed by law. Next and the last, and also one most important point again, LCs are separate from the sales contract. LCs अपने आप में एक standalone document है, उसका underlying sales contract से कोई लेना देना नहीं है. वो buyer seller के disputes हो सकते हैं, बट एलसी अपने आप में एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है. बस वो ये बताता है, ये ट्रस्ट मेंटेन करता है कि बैंक आपको पे करेगा. प्रोसीडिंग फर्दर, देयर आर ब्रॉडली 4 टाइप ऑफ एलसीज. फर्स्ट इज कमर्शियल और डॉक्यूमेंट्री एलसी. बेसिक फॉर्म है एलसी का और काफ़ी प्रेफर्ड किया जाता है सेलर्स के द्वारा, बट द नेक्स्ट 3 आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज स्टैंड बाय एलसी. स्टैंड बाय एलसी में इनिशियली जो ड्यूटी होती है पे करने की, वो बायर की होती है. माय डियर फ्रेंड्स, अगर बायर फेल हुआ पे करने से तो बायर का बैंक पे करेगा. सो इट्स फंक्शंस लाइक इंश्योरेंस. इट प्रोवाइड्स एडिशनल सिक्योरिटी टू द सेलर दैट ही विल बी पेड. थर्ड इज रिवॉल्विंग एलसी. सो लेट्स फ्रेंड्स टेक एन एग्जांपल. आपने कोई इंपोर्ट ऑर्डर प्लेस किया हैवी प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करने का, टर्बाइंस, बॉयलर्स इंपोर्ट करने का, जो कि रनिंग होगा एक शिपमेंट में आ ही नहीं सकता. वो कई सारी शिपमेंट्स लगेंगे उसे आने में. या लेट्स सपोज यू हैव प्लेस एन ऑर्डर फॉर 10,000 टन ऑफ क्रूड ऑयल टू अ ट्रेडर इन लग्जमबर्ग. तो अब एक शिपमेंट में 10,000 टन नहीं आ सकता, और आप बार बार ना जाएं अपने बैंक के पास कि मुझे हर शिपमेंट के लिए एलसी दीजिए. तो सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट, अ रिवॉल्विंग एलसी. रिवॉल्विंग एलसी आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए दी जाएगी. लेट्स सपोज 1 साल के अंदर आपके 12 शिपमेंट आने हैं जिसमें 10,000 टन ऑफ क्रूड ऑयल आपने इंपोर्ट करना है. वो आपको एक सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए देगी. उसके बाद आप उसी एक रिवॉल्विंग एलसी के बेसिस पे बार बार इंपोर्ट कर सकते हो. फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एक डिस्कशन भी है. इंपोर्ट ऑर्डर प्लेस करते ही एज सुन एज बैंक ने आपको एलसी इशू किया आपके फेवर में, यू गॉट अ पीरियड के आपको 12 महीने के अंदर 12 शिपमेंट्स मंगाने हैं फॉर एग्जांपल. ठीक है, अब एज अ बायर मेरी ये ड्यूटी हो गई कि मुझे अपना माल जल्दी से जल्दी बेचना है इन इंडियन मार्केट और इन फॉरेन मार्केट, और वहाँ से रिकवरी मुझे करनी है अपनी सेल्स के अगेंस्ट. अगर वो रिकवरी नहीं हुई तो बैंक मेरे को एनपीए डिक्लेयर करेगा. As soon as I declare an NPA, और अगर वो अमाउंट एनपीए का 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आईबीसी, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड विल ट्रिगर. सो वी मस्ट बी वेरी कॉशियस एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग. ये एक्ट्स अपने आपस में लिंक इस तरीके से होते हैं. प्रोसीडिंग फर्दर, द नेक्स्ट इज कंफर्म्ड एलसी. व्हेन देयर इज अ ट्रांजेक्शंस बिटवीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और एमएनसी टू एमएनसी, ये ट्रांजेक्शंस करोड़ रुपए में होते हैं. तो क्या होता है कि लेट सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक एलसी इशू कराया, मैं एक इंपोर्टर हूँ इंडिया में, मैंने एलसी इशू कराया यस बैंक से. एज वी नो यस बैंक हैज़ गॉन इनटू फाइनेंशियल ट्रबल्स रिसेंटली. तो मेरा एक्सपोर्टर जो बेनिफिशियरी वो कह सकता है कि आप इस एलसी को एसबीआई से या किसी और गवर्नमेंट बैंक से या लीडिंग प्राइवेट बैंक से कंफर्म करा दीजिए. अगर मैंने उसे एसबीआई से कंफर्म कराया, सो माय सेलर गेट एन एडिशनल सिक्योरिटी कि वो दूसरे बैंक से एलसी कंफर्म्ड है अगर यस बैंक ने पे नहीं किया. इन दैट वेरी केस इट इज नोन एज कंफर्म्ड एलसी. नाउ फ्रेंड्स, there's a question, is LC recommended for medium enterprises? Yes, but with the conditions. अगर आपके बिजनेस में मार्जिन है, ठीक ठाक मार्जिन है और आप मार्जिन से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो आप एलसी इशू कराएं. सिंस इट बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन द नेशंस, आपका बिजनेस बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर सकता है, बट एट द वेरी टाइम इट इज कॉस्ट लाइक हाई बैंक चार्जेस, हाई कोलेटरल मार्जिन्स. तो अगर स्मॉल डोमेस्टिक डील है आपकी, कोई आप स्मॉल ट्रेडर हैं या कोई छोटा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं,
तो आपके लिए 3-4 ऑल्टरनेटिव्स हैं, लाइक एस्क्रो अकाउंट, एडवांस पेमेंट्स एंड बैंक गारंटी. अदरवाइज यस, एलसी इज वेरी मच गुड. नाउ फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द जुडिशियल एस्पेक्ट्स, लीगल एस्पेक्ट्स के बैंक में आप एलसी को कब इन्वोक करा सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वोकेशन ऑफ एलसी इन कोर्ट. सपोज कीजिए कोई सिचुएशंस ऐसी घटी कि मैंने कोर्ट को अप्रोच किया कि कोर्ट आप एक ऑर्डर दें मेरे बैंक को, बायर बैंक को, कि आपके बायर जो मेरा बैंक है होम कंट्री में वो पेमेंट ना करे. तो क्या ऐसा बैंक कर सकते हैं? क्या ऐसा कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं? द आंसर इज नो. सिंस एलसी इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, LC 99% ऑफ द टाइम बैंक्स हैज टू पे. एक दो चीजें हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म करी हैं, दैट विल डिस्कस, जहां पे वेरी रेयरली यूज होंगी, जहां पे आप कोर्ट कह सकते हैं कि आप ना पे करें, चलेगा. सो LCs आर ऑटोनोमस कॉन्ट्रैक्ट, वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द अंडरलाइंग सेल्स कॉन्ट्रैक्ट जो भी बायर सेलर के बीच में हुआ. ये आपके सामने प्रिंसिपल है गवर्न बाय द सुप्रीम कोर्ट, गिवन बाय द इंडियन सुप्रीम कोर्ट, दैट द वैलिडिटी ऑफ द प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट इज इमैटेरियल to the bank's obligation to honor the LC. आप चाहें तो आपसे नोट कर सकते हैं, otherwise you can have access of my PPT after the conference. Proceeding, obligations of bank. Banks are obligated to pay upon presentation of documents that comply with the terms of LC. ये भी again एक Supreme Court judgment है, Indian Supreme Court. Now we are going to discuss the two areas जहाँ पे Indian courts मना कर सकते हैं कि आप पेमेंट ना करें. First is fraud. फ्रॉड के बारे में माय डियर फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी बात कही जाती है, दैट इट टेंट्स ऑल द ट्रांजैक्शंस विद इलीगैलिटी. यानी कि कहीं भी फ्रॉड अगर आ गया तो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को इलीगल बना देता है. ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हमारे इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. इंडियन बैंक्स आर हैव अ मस्ट टू फॉलो, बट इंटरनेशनल बैंक फॉलो करें ना करें डिपेंड्स ऑन इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस रूलिंग्स. फर्स्ट इज फ्रॉड. फ्रॉड अगर एक ऐसे नेचर का फ्रॉड है जो कि पूरी एलसी, फॉर एग्जाम्पल कीजिए आपने एक्सपोर्ट किया बट वो एक्सपोर्ट बोगस है, या एलसी आपने इशू कराई बैंक के कल्यूजन से, बैंक के एम्प्लॉइज ने आपस में मिलकर आपके लिए एलसी इशू कर दी. या थर्ड एग्जांपल, एलसी में आपके सेलर ने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया, बैंक डिनाई किया, ये एलसी तो हमने इशू नहीं किया, हमारे सिस्टम में ही नहीं है. या लेट सपोज कीजिए आपने लैपटॉप को ऑर्डर प्लेस किया आपको, और वो एक बोगस ट्रांजेक्शन है. ये ऐसे नेचर के फ्रॉड्स हैं, इनमें बायर जा सकता है बैंक कोर्ट के पास कि भाई मेरा एलसी रिवोक कीजिए, और उसे एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये फ्रॉड इस तरीके से हुआ है. दिस इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट. लॉ इज साइलेंट बट कोर्ट्स कैन टेक अ व्यू टू इन्वोक द एलसी. सेकेंड इज, एंड द लास्ट एंड वेरी वेरी रेयरली यूज्ड, इज द ट्रांजेक्शंस ऑफ स्पेशल इक्विटीज. मान के चलिए एक ऐसी सिचुएशन जैसे कि वॉर हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है अभी, या यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए, या जैसे ही मैंने इंडियन गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, अब मैं पे नहीं कर सकता, मेरा फाइनेंशियल पूरा सिस्टम हिल जाएगा. या आप मान के चलिए कि कोई मेरे गुड्स आ रहे थे, इंश्योरेंस नहीं है और डैमेज हो गया, ऑल्दो इंश्योरेंस इज अ मैंडेटरी पार्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड, बट गुड्स को डैमेज हो गया. तो ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे आपका इरिट्रेवेबल इंजस्टिस या तो वापस ही नहीं होगा, और डेट बियॉन्ड मॉनेटरी लॉस, आपको इरिट्रेवेबल इंजस्टिस अगर अकर होगा तो कोर्ट व्यू ले सकते हैं, बट कोर्ट विल टेक अ स्ट्रिक्ट व्यू सिंस ये ट्रस्ट को, कंट्रीज की रेपुटेशन को, कंट्रीज के ट्रस्ट को हिला सकता है. नाउ फ्रेंड्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द लास्ट स्लाइड ऑफ द जुडिशियल अप्रोच, कैन एलसी पेमेंट्स बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन में फ्रेंड्स जब इंटरनेशनली आर्बिट्रेशंस होते हैं, आर्बिट्रेशन की चेयर कहीं भी हो, डिस्प्यूट इंडिया से रिलेटेड है तो आर्बिट्रेशन इंडियन लॉज के हिसाब से होगा बिटवीन टू पार्टीज. बट लॉ ये है कि जो भी डिस्प्यूट अंडरलाइंग सेल्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, मेड बी रिलेटेड टू क्वांटिटी, क्वालिटी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और एटसेट्रा, वो सारी चीजें आर्बिट्रेबल हैं इफ द बोथ द पार्टीज आर एग्रीड एंड दे हैव अ डिटेल्ड आर्बिट्रेशन क्लॉज इन द एग्रीमेंट. बट एलसी के ऑब्लिगेशंस जब तक आप नहीं कर सकते तब तक आपने एग्रीमेंट में उस तरीके से उसे एक्सप्लिसिटली एग्री नहीं किया हो. ऑल्दो एग्रीमेंट में एग्री करने के बाद भी हमारा इंडियन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्बिट्रेबल तभी है जब डिस्प्यूटेड फ्रॉड हो और एक ऐसी ग्रेव सर्कमस्टांस हो. अगेन ऑल्दो आर्बिट्रेबल है बट नहीं भी है एट द सेम टाइम. I repeat the principle held by the Indian, given by the Indian Supreme Court, that the Indian Supreme Court in case of
has held that the disputes relating to fraudulent or disputed invocation are in principle arbitrable under the Arbitration and Conciliation Act 1966 unless arbitration agreement is itself vitiated by fraud. यानी कि पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही अगर सामने वाली पार्टी बता दे कि फ्रॉड पे बेस्ड है तो आर्बिट्रेबल नहीं है, वरना आप आर्बिट्रेशन कर सकते हैं. सॉरी, एलसी के डिस्प्यूट सर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के हिसाब से जाएंगे कोर्ट में ही, बट दैट डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट एज वेल. मतलब आपको फ्रॉड एस्टैब्लिश करना पड़ेगा बियॉन्ड डाउट, और वो बहुत रेयर सिचुएशंस हैं. एक दो केसेस में हुआ है, बट बहुत रेयर सिचुएशंस हैं. तो आई एम कंक्लूडिंग द जुडिशियल डिस्कशन हेयर. I am concluding the legal discussion here. That is, the judicial approach remains one of the minimal interference, preserving the sanctity of LCs and permitting intervention only in case of manifest fraud or irretrievable injustice. कोर्ट हमेशा ध्यान रखते हैं कि LC की जो सेंसिटी है बरकरार रहे, ट्रेड दो कंट्रीज दो पार्टीज के बीच में हमेशा होता रहे, और जब तक रेयर सिचुएशंस ना हो, जब तक वो ट्रिगर ना हो, वो इन्वोक ना हो LC. Proceeding further, we all know LC is issued by the bank. Banks act as statutory intermediary. तो LC गवर्न होती है ब्रॉडली 3 एक्ट से. फर्स्ट इज बैंकिंग एक्ट, RBI एक्ट बीइंग अ रेगुलेटर, एंड द थर्ड इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FEMA. बीइंग एन इंटरनेशनल बिजनेस, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इज हाईली इज अ मैटर ऑफ हाईली करके चलना पड़ेगा आपको उसकी कंप्लायंसेस को इन द बिजनेस ऑफ LC. बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है बहुत इंपॉर्टेंट. लेट सपोज हमें ये ध्यान रखना होगा कि बायर को जो पेमेंट बायर कर रहा है वो गुड्स के इंपोर्ट के अगेंस्ट कर रहा है. अगर कोई गुड्स इंडिया आए ही नहीं, लेट्स सपोज हवाला, कोई गुड्स इंडिया आए नहीं और पेमेंट कर दिया बैंक ने, तो इट विल बी कंसीडर्ड ए प्रोसीड ऑफ क्राइम एंड वुड बी कंडक्ट, माना जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एंड इट वुड बी कवर्ड इन शेड्यूल C फॉर FEMA. नेक्स्ट फ्रेंड्स, वी आर इन अ टेक्नोलॉजिकल ईरा. हम कुछ भी करें, क्लाउड बैंकिंग से हम दूर नहीं रह सकते. वी नॉट एरा ऑफ UPI. LC भी सारा बैंकिंग क्लाउड बैंकिंग से होता है. हम रिक्वेस्ट क्लाउड बैंकिंग के थ्रू डालते हैं और बैंक अप्रूवल्स भी क्लाउड बैंकिंग के थ्रू देता है. बट बेनिफिट्स बहुत हैं. हैकर्स नए नए लूपहोल्स रोज निकालते हैं जिससे आपका डेटा चोरी हो सकता है. एक बार डेटा चोरी हो गया, मान के फॉर एग्जांपल रिलायंस का डेटा अगर चोरी हो गया, कि उसने पेमेंट किसे करना है, ऑल्दो स्विफ्ट से होता है LC का बिजनेस, बट अगर डेटा चोरी हो गया तो इसके लिए एक बहुत लीगल दो लीगल बड़े फ्रेमवर्क्स हैं. RBI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क 2016 एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसमें 5 मेजर बातें कही गई हैं जो बैंक्स को फॉलो करनी है. तो बैंक्स का रेगुलेशंस तो वहाँ से कंट्रोल होता है, बट हमें भी ID पासवर्ड और बाकी चीज़ों की बहुत सेफ्टी रखनी पड़ती है. जो 5 मेजर बातें इन 2 लॉज में कही गई हैं. फर्स्ट इज डेटा मस्ट बी स्टोर्ड इन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट, जस्ट लाइक अवर व्हाट्सएप चैट नहीं होती व्हाट्सएप सर्वर पे जिस लैंग्वेज में हम बातें करते हैं, इट इज इनक्रिप्टेड फॉर्म. सेकंड इज पेमेंट डेटा. पेमेंट डेटा, आप किसी भी चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं, ये 2 एक्ट्स कहते हैं कि आपको वो डेटा इंडियन सर्वर्स पे ही स्टोर करके रखना है एज पर द RBI गाइडलाइंस. थर्ड इज बैंकिंग डेटा अदर देन द पेमेंट डेटा. बैंकिंग डेटा जो भी है अदर देन पेमेंट डेटा, वो आप इंडियन बैंक्स फॉरेन सर्वर्स पे रख सकते हैं, क्लाउड पर रख सकते हैं, बट दैट मस्ट बी एक्सेसिबल बाय द डे एंड इन इंडिया ओनली. फोर्थ इज स्ट्रिक्ट strong access control like 2-factor authentication and authorization personnel, जैसे हमारे E-way bill में होता है 2-factor authentications. And the last is periodic audits. ये periodic audits इसलिए करवाता है RBI. अभी recently 2018 में बिफोर कोविड कुछ लीडिंग प्राइवेट बैंक्स का डेटा चोरी हुआ था ओवर द डार्क वेब. बाद में ऑडिट्स मतलब स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगाने के बाद, कुछ रिकवरीज करने के बाद डेटा ऑल तो वापस आ गया था, बट डेटा बिलोंग्स टू अस. तो RBI के कुछ गाइडलाइंस हैं जिसमें 2 बातें ऑडिट्स में ध्यान रखनी है हमको. पहला है हमारे कंट्रोल्स अपडेटेड हों, और दूसरा है हमारे कंट्रोल्स इफेक्टिव भी हों और लेटेस्ट रूल्स के हिसाब से फॉलो करना है अपने को. फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन द LC बिजनेस. थैंक यू वेरी मच फॉर अ पेशेंस हियरिंग माय PPT. Thank you. My PPT would be hosted on our website after the conference. In case you have any queries, you can write to us on our email ID mentioned on our website, and we will ensure that the queries will be answered within 7 working days. Thank you very much.